Good afternoon, all of you. Today we'll do canal system in sponges. Last time हमने general characters किए थे. Today we'll do canal system. What exactly is canal system? You know that in the body wall of sponges there are certain cavities, or you can say canals. So the system of interconnected canals is known as canal system. Right? So we'll see different types of canal system. See, this is just a section of, uh, you know, uh, asconoid canal system. See, yes, that उस दिन मैंने तुम्हें दिखाया था कि this is ल्यूकोसोलेनिया, राइट. सो ल्यूकोसोलेनिया इफ अगर हम सेक्शन लेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ल्यूकोसोलेनिया हैज़ गॉट एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम. अब आप देखो उसकी बॉडी वॉल जो है कंपैरेटिवली काफ़ी थिन है. सेंटर में लार्ज कैविटी है. सो अगर हम एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स करें तो फर्स्ट यूल सी दैट there are certain openings. Can you see? This opening is known as ostium. और जो ये ostium if opening, if you see, this opening is just not mere space. There are certain cells known as porocyte, and these porocytes are the cells which they have got pores in between, and these pores in the porocyte led to the formation of ostium. So ostium is the opening on the body wall of the you can say leukosolenia, which allow entry of water, right. Another thing, if you see that the outer wall of the leukosolenia, it consists of cells which we call as outer wall is known as spinacoderm, consisting of pinacocytes. Inner wall, if you see, is known as choanoderm, made up of choanocytes. And in between them is mesoglia or mesenchyme. Here you'll see mesoglia is also just a gelatinous layer present between pinacoderm and choanoderm. And in the center there is a large cavity which we call as spongiocele. Correct. And spongiocele, if you see at the base, it is closed. On the anterior side there is a large opening known as osculum. So all together in asconoid canal system you have ostium. Then the ostium, if you see, it opens into spongiocele, and spongiocele opens into osculum, right. So the movement, if you see, of water is from ostium to spongiocele to osculum, and osculum to outside. So this way the water is circulated, and if you see the inner wall is lined by choanocytes, and choanocytes का जो structure दिखाया था ना, इस तरह है, flagella है. तो inner wall जो है, they have flagellated choanocytes जो कि अनकोऑर्डिनेटेड वे में बीट करते हैं, जिससे कि वाटर जो है अंदर की तरफ ड्रॉ होता है. So the simplest type of canal system is asconoid canal system found in leuco. Example is leucosolenia. Correct. Now after asconoid canal system, with advancement, it led to the development of syconoid canal system. How it developed? देखो क्या हुआ कि now if you see, just a simple wall is there and large spongiocele is there. Now evagination of body wall occurred like this. Evagination, something like this. उससे क्या हुआ कि जो बॉडी वॉल है वो क्या हुई, थिकन हो गई, और उससे क्या हुआ, स्पॉन्जोसील जो और गैस्ट्रल कैविटी है वो डिक्रीज हो गई. इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ a structure something like this.
Can you see? This is known as grade 1 cycloid canal system. Here if you see, body wall is same. The only difference is now, let me clear it. The only difference is here the body wall, if you see, this body wall instead of remaining same, it has become, twisted, or you can say something, it has become something like this, where the body wall is not just simple, it has turned into leading to the formation of various cavities like this. Now you see, इवेजिनेशन से क्या हुआ, देखो इस पोर्शन, ये इवेजिनेटेड पोर्शन है ना, ये देखो इवेजिनेशन से क्या हुआ, जो कोएनोसाइट्स जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे थे, वो कोएनोसाइट्स अब कहाँ गए, इस तरह जो है इन कैविटीज़ में आ गए, और आउटर एंड जो थे, जो ऑस्टिया थे, जो कि सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट थे, वो ऑस्टिया कहाँ गए, अंदर की तरफ आ गए. कैन यू सी? नाउ दिस evagination led to the formation of canal which we call as radial canal. अब रेडियल कैनाल आप देखो चारों तरफ से so many opening are there which we call as ostium. Right now, and if you see ostium, it led to radial canal. राइट अब रेडियल कैनाल देखो आप कहाँ ओपन हो रही है, रेडियल कैनाल जो है एक नैरो ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस्टिया, और इंटरनल ऑस्टिया से ये कहाँ ओपन हो रही है, स्पॉन्जोसील में. राइट फॉर्मेशन इज सेम. आउटर आप देखो पिनाकोसाइट लेयर आउटर तरफ, इनर की तरफ क्या है, क्वानोडर्म लेयर है, अंदर स्पॉन्जोसील है, ये ऑस्कुलम. द ओनली डिफरेंस इज कि जो बॉडी वॉल है वो थिकन हो गई है और स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है. पहले स्पॉन्जोसील को कौन लाइन करता था, कोएनोसाइट. अब स्पॉन्जोसील को कौन लाइन करता है, पिनाकोसाइट. यानी कि पिनाकोसाइट दो तरफ प्रेजेंट है, आउटर साइड भी प्रेजेंट है और इनर साइड भी प्रेजेंट है, जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहा है. तो इस तरह की इफ यू सी grade 1 cycloid canal system is found in Cycatia. Cycata, sorry. Cycata एक स्पंज है जिसमें कि grade 1 टाइप ऑफ cycloid canal system पाया जाता है. Now in our syllabus we have cycloid canal system that is of grade 2, or you can say simply cycloid canal system किसमें पाया जाता है, साइकॉन में. Now यहाँ पर देखो what is the difference over here. अभी तक क्या था कि ल्यूकोसोलेनिया में क्या था कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ मीजोग्लिया वॉज देयर. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई मीजोग्लिया लेयर जो है, अब आप देखो इमेजिन करो इस तरह था ये, तो जो मीजोग्लिया लेयर बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं डर्मल कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं, डर्मल कॉर्टेक्स. और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स. राइट अब जैसे जैसे स्पंज डेवलप हुई, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स और डर्मल कॉर्टेक्स जो है वो दे स्टार्टेड थिकनिंग. अब आप देखो जब ये थिकन होंगे दोनों डर्मल कॉर्टेक्स और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स, ऑब्वियसली स्पॉन्जोसील कैविटी इफ यू सी दिस विल रिड्यूस. राइट नाउ ड्यू टू द थिकनिंग इफ यू सी ओवर हेयर, कैन यू सी, ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द डर्मल कॉर्टेक्स. अब आप देखो यहाँ पर क्या था, सिंपल, दिस वॉज due to the formation of radial canal, incurrent canals, incurrent I would say spaces were formed. Can you see the incurrent, just see incurrent spaces were formed because of the evagination of the body wall, right? So there were narrow spaces which we called incurrent spaces. These incurrent spaces, they were called incurrent canal later on. Just see in Cycon. Here if you see, this is incurrent canal, but now the incurrent canal is not simple because of the thickening of what dermal cortex. If you see certain cells, they were pushed over at the, or you can say at, pushed above over the incurrent canal like this.
right? So now, since we'll do Psychonaut canal system, grade 2 is in our syllabus, we'll do in detail what exactly is there in Psychonoid canal system. Now, the first part, if you see in Psychonaut canal system, is dermal ostia. What is dermal ostia? If you see here, if we enlarge this area, it will look something like this. Can you see? If we enlarge this area, it will look something like this. Right? Now, the first component is dermal ostia. Just see, this is dermal ostia. This ostium is known as dermal ostium, right? And this dermal ostium is also known as inhalent or incurrent pore. Or in fact, if you see, this pore is not a single pore. There is a group of 2-3 pores. If we take section, if we take the front section, it will look something like this. There are 4 elevations, और इन चारों एलिवेशंस के बीच में एक डिप्रेशन है जहाँ पर यू सी 2-3 डर्मल ऑस्टिया आर देयर. And these dermal ostia, where are they present? They are present in porocyte, and they are surrounded by cells known as myocytes. Myocytes क्या कहते हैं? Contractile cells है. Dermal ostia का size जब contract करेंगे तो क्या होगा? Dermal ostia का size कम हो जाएगा. जो relax करेंगे तो dermal ostia का size बढ़ जाता है. So इस तरह जो dermal ostia है वहाँ पर 2 या 3 opening है known as inhalent pore और incurrent pores. Second, if you see component is after dermal ostia, if you see, you can say these act as mouths for incoming water. Next is incurrent canals. Just see, this is incurrent canal. राइट यहाँ पर आप देखो, इसको इनहेलेंट कैनाल भी कहेंगे या एफरेंट कैनाल भी कहेंगे. ये नैरो स्क्वेरिश कैनाल्स है. और सिंपली अब आप देखो कि बिकॉज रेडियल कैनाल ई वैजिनेशन से फॉर्म हुए, तो ऐसा लगता है कि जो पिनाकोडर्म साइड्स है या आउटर साइड्स है उसने इनवैजिनेट किया और इस तरह इनकरेंट कैनाल की फॉर्मेशन हुई. राइट और आप ये भी कह सकते हो कि जो इनकरेंट कैनाल है, इफ़ यू सी द डायग्राम, this is the incurrent canal. This is the canal which is outside the spongiocele. Right? Incurrent canal is outside spongiocele. It is not inside spongiocele. Like this. Right? Now, if we see the third component, that is prosopyle. What is prosopyle? If you can you see the spaces? This is incurrent canal. I'll just rub it. This is incurrent canal, and this incurrent canal, if you see, is in contact with radial canal by narrow spaces, and these narrow spaces are known as prosopyle. Right? These prosopyle, if you see, these gaps are intercellular. जैसे हमने बताया था कि जर्मल ऑस्ट्रिया क्या है, इंट्रासेल्युलर है, और प्रोसोपाइल क्या है, इंटरसेल्युलर है. 2 सेल्स के बीच में गैप होके एक ओपनिंग बनी है या पैसेज बना, जिसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल. नेक्स्ट, इफ यू सी, प्रोसोपाइल लीड्स इनटू रेडियल कैनाल. सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम इज रेडियल कैनाल. अब आप देखो, रेडियल कैनाल इज कंपैरेटिवली लार्जर और इट इज लाइंड बाय व्हाट? इफ यू सी, ये क्या है? कोएनोसाइट्स ऑन ऑल द साइड्स. राइट? इफ यू सी, दीज आर द वो स्क्वेरिश थे, ये ऑक्टागोनल कैनाल यानी 8 साइड्स कैनाल है, एंड दे ओपन बाय एपोपाइल. जैसे ये प्रोसोपाइल
इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में प्रोसोपाइल ओपनिंग थी, सेम वे रेडियल कैनाल से यहाँ पे एक्सकरेंट कैनाल है वो किससे ओपन हो रही है, एपोपाइल से हो रही है। और चारों तरफ किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स, राइट। नाउ इफ यू सी इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल है एंड दे आर ऑल्टरनेटिंग ईच अदर। अगर हम इनका अरेंजमेंट देखेंगे ना तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। अब आप देखो कि ये क्या है, रेडियल कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है। तो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल देखो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वे में देख लो या हॉरिजॉन्टल वे में देख लो या वर्टिकल वे में देख लो, राइट। सो सपोज दिस इज इनकरेंट कैनाल, it is surrounded by 4 radial canal, or if you see this is radial canal, it is surrounded by 4 incurrent canal, so they alternate each other, correct. Now we come to the next component, that is apopyle. Now what is this apopyle? If you see apopyle को internal ostia भी कहते हैं, जैसे वहाँ पे dermal ostia था ना, इसको हम इंटरनल ऑस्टिया भी कहते हैं। एंड इफ़ यू सी ये एक तरह से अपर्चर है विच अलाउज द वाटर टू मूव फ्रॉम रेडियल कैनाल टू स्पॉन्जोसील। सो ये एक डायफ्रम की तरह भी काम करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें एपोपाइल का, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखो ये एपोपाइल है, ये दिस एपोपाइल इज सराउंडेड बाय व्हाट, मायोसाइट्स। और ये मायोसाइट्स क्या करते हैं, इस एपोपाइल की जो के पोर को या ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इफ यू सी आफ्टर एपोपाइल इज एक्सकरेंट कैनाल। हालांकि इस डायग्राम में एक्सकरेंट कैनाल दिखाई नहीं दे रही, आई विल शो यू अनदर डायग्राम। ये देखो ये एपोपाइल है और ये एपोपाइल जो है इट इज ओपनिंग इनटू अ स्मॉल कैनाल। इस कैनाल को बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल, राइट। और अब आप देखो ये दीज आर स्मॉल वाइड चैम्बर्स जहाँ पर रेडियल कैनाल ओपन हो रही है और यहाँ पर दे आर लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स, राइट। ये जो ओपनिंग है इसको गैस्ट्रल ऑस्टिया भी बोलते हैं। गैस्ट्रल ऑस्टिया क्या है, एक्सकरेंट कैनाल की जो ओपनिंग है, एक्सकरेंट कैनाल जब स्पॉन्जोसील में ओपन करती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज गैस्ट्रल ऑस्टिया। तो कितने तरह के ऑस्टिया हो गया, पहला था डर्मल ऑस्टिया जो कि आउटसाइड प्रेजेंट था, फिर था इंटरनल ऑस्टिया जहाँ रेडियल कैनाल ओपन हो रही है, और जहाँ से एक्सकरेंट कैनाल ओपन हो रही है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रल ऑस्टिया, करेक्ट। नाउ after this excurrent canal, excurrent canal is opening where, in you can say spongocoel. This is large cavity in the center which we call as spongocoel, right। spongocoel अब आप देखो कि इस spongocoel को एट्रिया भी बोलते हैं, क्लोएका भी बोलेंगे, सिंगुलर है ना, क्लोएका भी बोलेंगे, पैरागैस्ट्रल कैविटी भी बोलेंगे, ये हॉलो है, राइट। अब आप देखो इनर साइड इफ यू सी इट इज लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स। स्पॉन्जोसील इफ यू सी एक तरफ से नीचे की तरफ से क्लोज्ड है एंड आगे की तरफ से इट इज ओपनिंग बाय ऑस्क्यूलम। सो द लास्ट पोर्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम इज ऑस्क्यूलम, राइट। ऑस्क्यूलम इफ यू सी, इफ आई शो यू ओवर हेयर ऑल्सो, ये देखो साइकॉन का जो अगर हम सेक्शन लें तो वो इस तरह दिखेगा। ये तो अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो इस तरह जो वो दिखता है। तो अब आप देखो दिस इज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इज ओपनिंग आउट बाय ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम की एक वाइड ओपनिंग है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्क्यूलर फ्रिंज। यहाँ पे स्पिक्यूल्स कैसे, मोनोएक्सॉन इस तरह के स्पिक्यूल्स हैं, निडल शेप्ड स्पिक्यूल्स हैं, स्पीयर शेप्ड स्पिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर क्या है, मायोसाइट्स भी प्रेजेंट है जो कि ऑस्क्यूलम की ओपनिंग को नैरो या वाइड करते रहते हैं, करेक्ट। अगर हम फिजियोलॉजी देखें, मूवमेंट ऑफ वाटर देखें तो कैसा है कि जैसे आउटसाइड वाटर है,
राइट। आउटसाइड वाटर जो है वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, इनकरेंट कैनाल में एंटर करेगा थ्रू व्हाट, डर्मल ऑस्टिया। ये देखो डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो जो आउटसाइड वाटर है, once again I'll draw here, it will move into incurrent canal through dermal ostia। अब इनकरेंट कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा। किसके थ्रू, थ्रू प्रोसोपाइल। अब रेडियल कैनाल से यहाँ पर क्या था, दिखाया था मैंने आपको, इनकरेंट कैनाल। रेडियल कैनाल से इनकरेंट कैनाल में जाएगा थ्रू एपोपाइल, करेक्ट। एक्सकरेंट कैनाल से, आई एम सॉरी, दिस इज एक्सकरेंट, नॉट दिस इज एक्सकरेंट कैनाल एंड इनकरेंट कैनाल तो पहले ही आ गया। इसको बोलते हैं यहाँ पर जो है एक्सकरेंट कैनाल। और एक्सकरेंट कैनाल से इफ यू सी वाटर कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा। कौन से ऑस्टिया से, इंटरनल ऑस्टिया से, और उसको हम गैस्ट्रल ऑस्टिया भी बोलेंगे, नॉट गैस्ट्रल, इंटरनल ऑस्टिया, गैस्ट्रल ऑस्टिया। और स्पॉन्जोसील से वाटर जो जाए आउटसाइड, बाहर जाएगा थ्रू ऑस्क्यूलम। सो आ गया समझ में, कोर्स ऑफ वाटर, किस तरह वाटर जो बाहर प्रेजेंट था पूरी बॉडी से पास होता हुआ ऑस्क्यूलम से वो इस तरह बाहर होता हुआ जाएगा। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इफ यू सी, अगर हम सेक्शन लेंगे देखो तो भी इस तरह दिखाई देंगी। अगर हम स्पंज का सेक्शन देते हैं, ये जो वो है, यू कैन से स्पॉन्जोसील है, ये देखो रेडियल कैनाल्स हैं, ये भी रेडियल कैनाल, ये भी रेडियल, ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये क्या है, ये एक्सकरेंट कैनाल है, करेक्ट। ये क्या है, एपोपाइल, प्रोसोपाइल, ये एपोपाइल, और ये डर्मल ऑस्टिया, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द significance of canal system? First of all, the incoming water brings nutrition with it. It brings food material for nutrition. Second thing is that along with the water, it brings oxygen for respiration. Third, it brings, sperms, so it is responsible for reproduction, right? Again, this was about incoming water. What about outgoing water? Outgoing water, if you see, it carries the waste material, or you can say undigested food material along with it, right? And also it carries nitrogenous waste material, with it. So you see that this way literally all the vital functions, they are carried out by the canal system in sponges, correct. Now like I would just like to go a little ahead. हालांकि तुम्हारे सिलेबस में तो क्या है, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम है, राइट। सबसे सिंपल कौन सा है कैनाल सिस्टम, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। इसमें भी हमने किया ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इसके बाद भी एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में किस लिए करा रही हूँ, एक बहुत ही ब्रीफ में करा रही हूँ ताकि तुम्हें क्लासिफिकेशन में कोई मुश्किल ना आए। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो है थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स कैसे, कि इसमें क्या होगा
कि जो डर्मल कॉर्टेक्स और जो गैस्ट्रल कॉर्टेक्स है, डर्मल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। गैस्ट्रल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसिल की तरफ प्रेजेंट है। यानी कि जो मीजनकाइमा है वो इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है कि स्पॉन्जोसिल जो है लगभग जो है वो ख़त्म ही हो जाता है। देखो मैं अब दिखाती हूँ, अब आप ये देखो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि लगभग अब आप देखो कि स्पॉन्जोसिल खत्म हो गया है, दैट हैज़ बिन टेकन बाय एक्सकरेंट स्पेस। जो एक्सकरेंट कैनाल है, पहले के एक्सकरेंट कैनाल कहाँ ओपन कर रही थी, वाया डर्मल ऑस्टिया, वो स्पॉन्जोसिल में ओपन कर रही थी। अब एक्सकरेंट कैनाल किस में ओपन हो रही है, एक्सकरेंट स्पेस में। वाई, बिकॉज ये देखो यहाँ पर जो मीजोग्लिया है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि स्पॉन्जोसिल स्पेस खत्म हो गई है। और ये देखो आप, दिस इज रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल किस तरह है, दिस इज इनकरेंट कैनाल। कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई है। तो ज़्यादा ब्रांचिंग क्यों हुई, क्योंकि कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप कर गया। जो डर्मल कॉर्टेक्स डेवलप करा तो ब्रांचिंग किस में हुई, इनकरेंट कैनाल में। गैस्ट्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप हुआ तो डेवलपमेंट किस में हुई, रेडियल कैनाल में हुई। तो इफ़ यू सी क्या होता है, आई जस्ट सी दिस इज, ये क्या है, इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल है। जब रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल में ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, जैसे रेडियल कैनाल है, अगर ये इस तरह की ब्रांचेस, इस तरह के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो इस तरह डेवलप करने लग जाएंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग सिंपल कैनाल। सेम वे, तो ये देखो रेडियल कैनाल वो इस तरह जो है डेवलप करने लगी। और इसी तरह जो इनकरेंट कैनाल है उसमें भी जो है एक सिंपल चैम्बर न रह के, इफ इट दिस ऑल्सो अगेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग ब्रांचेस लाइक दिस, तो क्या होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम होगा, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, राइट। अब जो है इन ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, सबसे पहला जो सिस्टम है वो है यूरीपाइलस ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। यूरीपाइलस ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। यूरीपाइलस में क्या है कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, अब आप देखो ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं इस तरह हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो कोएनोसाइट्स हैं इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं, जो वाइड हैं। और ये किस में ओपन कर रहे हैं, आई विल जस्ट शो यू हियर इन दिस डायग्राम। देखो ये क्या है, जस्ट सी, ये क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है किसके, रेडियल कैनाल के। और ये किस में ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर इनकरेंट कैनाल में। वाई दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। सो जब इस तरह वो डेवलप हो जाते हैं, जो इनकरेंट कैनाल और जो रेडियल कैनाल में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, तो इसको हम कहेंगे यूरीपाइलस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, राइट। अब आप देखो तो अगेन अनदर इफ यू सी इज प्रोसोडल टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। तो प्रोसोडल में क्या होगा कि जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं ये स्मॉल हो जाएंगे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो स्मॉल हो जाएंगे। और जो एपोपाइल है ना वो जो है, सॉरी प्रोसोपाइल, ये देखा, ये जो प्रोसोपाइल है ये ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रोसोडल टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, राइट। कई बार क्या होता है कि ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं उनके, ये रेडियल कैनाल के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, ये उनके आगे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं एफोडस, तो ये एफोडस जिसमें ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि इफ़ यू सी, ये जो प्रोसोडस है या ये जो यू कैन से प्रोसोपाइल है वो कम डेवलप होता है। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है एफोडल टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम।
अगर दोनों ही प्रोसोडल और एफोडल दोनों प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे डिप्लोडल। बस फॉर योर इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि देखो, आप इतना समझो कि ये जो रेडियल कैनाल थी, अब रेडियल कैनाल में क्या हुआ कि इस तरह के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बनने लग गए। ये देखो इस तरह के, मतलब यानी कि इतने डेवलप कर गई। जो प्रोसोपाइल पहले डायरेक्टली इसमें ओपन करते हैं, वो प्रोसोपाइल किस में ओपन कर रहे हैं? इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, इनकरेंट कैनाल से। करेक्ट। तो जो यूरिपाइलस, जो सबसे पहला जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, एक बार मैं फिर से तुम्हारे लिए और जस्ट एक जस्ट भी हो जाएगा। जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में पहला है यूरिपाइलस ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, और यू कैन से यूरिपाइलस जो है एक ग्रेड है कैनाल सिस्टम ल्यूकोनॉइड। यूरिपाइलस में क्या होगा कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो इस तरह होंगे और यहाँ पर जो है प्रोसोपाइल ओपन करेगा। सेकंड इज प्रोसोडल। प्रोसोडल में क्या होगा कि जो प्रोसोपाइल्स हैं वो इस तरह जो है ज़्यादा डेवलप्ड होंगे इनकरेंट कैनाल में। थर्ड वन इज एफोडल। एफोडल में क्या होगा, ये जो चैम्बर्स हैं, कौन से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, उनके आगे इस तरह एक जो ना कैनाल टाइप डेवलप हो जाएगी जिसको कहते हैं एफोडस। तो इस तरह के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, इस तरह के यू कैन से कैनाल सिस्टम में जहाँ पर एफोडस ज़्यादा डेवलप हो उसे कहेंगे एफोडल। फोर्थ वन इज डिप्लोडल। डिप्लोडल में क्या होगा कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है उसमें प्रोसोडस भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा और एफोडस भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो इस तरह के ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम कहेंगे डिप्लोडल ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम। राइट। वाई आई हैव डन ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम ऑल द नॉट इन योर कोर्स, ताकि क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉरीफेरेंस का, में आसानी हो। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यूरिपाइलस क्या है, प्रोसोडल क्या है, एफोडल क्या है और डिप्लोडल क्या है। This is all for today. Thank you.